Good morning, students. Today we are starting the another topic from chapter number 4. Chapter name is Thinkers, Beliefs and Building. So, students, in the previous topic we discussed about the introduction of this chapter as well as the information about the great Sanchi Stupa which was built by great Mauryan Empire Ashoka. Today we will discuss about the background of the different religions in India. So students, you know that India is the multi-linguistic country as well as the multi-religious country, and not presently, before so many centuries ago there were different kind of religions in India. So in this way, the mid first millennium BCE is often regarded as a turning point in the world history. Students, BCE stands for before Christ era. It means students, इसमें वो घटनाएं आती हैं जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई, और दिस वॉज द एरा, दिस वॉज द टाइम जब विश्व इतिहास के अंदर बहुत से बड़े बड़े परिवर्तन आए. बिकॉज एट द टाइम इट सॉ द एमरजेंस ऑफ थिंकर्स. ये वो समय था जब विश्व में बड़े बड़े विचारकों का जन्म हुआ, उनका उदय हुआ. लाइक द जरथुस्ट्र इन ईरान. जरथुस्ट्र वॉज द थिंकर, जरथुस्ट्र वॉज द फिलोसोफर हु formed the Parsi religion, who developed the Parsi religion in Iran. Persia was the ancient name of Iran. Kongzi in China. Kongzi was the last ruler of Shang dynasty. Socrates, Plato, Aristotle, these are the philosophers, these are the thinkers who were in Greece. And when we talk about India, in India there were Mahavira and the Gautam Buddha. So students, these are the philosophers, these are the thinkers which played an important role at that time, and their teachings were very influential for the people. They all tried to understand the mysterious of existence. Mysterious of existence means we all emerged from an unknown source. हम सभी एक अननोन सोर्स से हमारा जन्म हुआ है इनटू अ मिस्टीरियस वर्ल्ड, एक रहस्यमयी संसार में, वेयर वी मस्ट कंटिन्यूअली परस्यू सर्वाइवल मीनिंग एंड पर्पस, और जहां हम लगातार अपने जीवन के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, लगातार हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए काम करते रहते हैं. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द कॉस्मिक ऑर्डर. कॉस्मिक ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. ये सकारात्मक सोच का एक ऑर्डर है which believed that a person can simply write down their wish list and wait for it to become reality. जहां इंसान अपनी एक विश लिस्ट बनाता है और उसको वास्तविकता में लाने के लिए प्रयास करता है, एफर्ट्स करता है. So next is, there were several pre-existing traditions of thoughts, religious beliefs and practices. During the mid-first millennium in India, there were different kind of pre-existing traditions of thought. भारत में अलग अलग तरह के विचार थे, religious beliefs, अलग अलग तरह की धार्मिक विश्वास थे, and practices, और अलग अलग तरह के धार्मिक practices भारत में कंडक्ट किए जाते थे. All these we know from Rig Veda. Rig Veda, you know that in ancient India there were 4 Vedas and Rig Veda is one of them, और उनमें से ऋग्वेद एक है, which compiled between 1500 BCE and 1000 BCE, जो कि 1500 से 1000 BCE के बीच में लिखा गया. Sacrifices. Students, do you know about sacrifices? Sacrifices, to give up something. Sacrifices एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम कुछ चीजों को त्यागते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू यू इन ऑर्डर टू गेट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. और जब कुछ अच्छा अचीव आप अपने साथ लेना करना चाहते हो तो आपको ऐसे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं.
So at that time sacrifices were performed by the heads of the households. उस समय घर के मुखियाओं के द्वारा इस अलग अलग तरह के सैक्रिफाइसेस, त्याग और बलिदान जो हैं वो दिए जाते थे फॉर द वेलबींग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट. और ये सैक्रिफाइस इसलिए दिए जाते थे ताकि घर परिवार की उन्नति हो सके, उनका वेलबींग हो सके. नेक्स्ट इज sacrifices like Rajasuya and Ashwamedha. Rajasuya and the Ashwamedha were the type of yajna. Were the type of yajna, were the type of sacrifices. Students, do you know about Rajasuya? I tell you about Rajasuya. Rajasuya was a yajna और sacrifice. ये एक यज्ञ और एक sacrifice था परफॉर्म्ड बाय द एंशंट किंग, जो कि भारत में राजाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता था. हु कंसिडर्ड देमसेल्फ पावरफुल, और जो अपने आप को पावरफुल मानते थे वो सभी राजा महाराजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ करते थे. इट इज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत एंड रामायणा, और महाभारत और रामायण के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है. Ashwamedha was also the another type of yajna performed by the kings for fertility and also to gain power in the kingdom. ये यज्ञ भी राजाओं के द्वारा भारत में किए जाते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए. किंग विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण प्रेस्ट, और इन यज्ञों को, इन सैक्रिफाइसेस को कंडक्ट करने के लिए राजा महाराजे ब्राह्मण पुजारियों की सहायता से करते थे. आइडियाज कंटेन्ड इन द उपनिषद. स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द उपनिषद? उपनिषद वर द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग एंड आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म. उपनिषद जो हैं वो हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित शिक्षाएं और विचारों का एक संग्रह है जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए. These are 108 in numbers, और संख्या की दृष्टि से इन्हें 108 माना गया है. 108 इन्हें माना गया है. There are variety of questions about life. उसके अंदर लाइफ से संबंधित, जीवन से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से सवाल हैं. स्पेशली द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, जीवन का क्या अर्थ है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावनाएं होती हैं, एंड रीबर्थ. और उन उपनिषदों के अंदर भी पुनर्जन्म के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. रीबर्थ, पुनर्जन्म. नेक्स्ट वन इज, इन दिस टॉपिक there were the live discussions and debates took place in Kutagrashala. Kutagrashala was a type of a hut where traveling mendicants took shelter. जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले मेंडिकेंट्स, मीन्स टू से सेंट्स, फिलोसोफर्स और थिंकर्स अपनी यात्रा के दौरान रुका करते थे. ऐसे स्थान को कुटाग्रशाला कहते हैं, और उन कुटाग्रशालाओं का यूज डिस्कशंस और डिबेट्स, यानी कि रिलीजियस डिस्कशंस और डिबेट्स के लिए किया जाता था. पीपल्स वर देयर, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स वर देयर हु लिसन दैम. वो लोग उन लोगों को सुनते थे और उनके शिष्य भी बन जाते थे, उनके डिसिपल्स भी बन जाते थे. थिंकर्स लाइक महावीरा एंड बुद्धा. You students, you know about the Mahavira and Buddha. You have already studied about these two people, about these two thinkers or these two philosophers in your previous classes. These two people, these two philosophers questioned the authority of the Vedas. भारत में जन्म लेने वाले ये दो थिंकर्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के अंदर वेदों की अथॉरिटी पर कुछ सवाल किए, कुछ क्वेश्चंस उनके ऊपर किए. So students, this is our topic. If you face any kind of problem, please you can call me. Thanks.